Hello dear students, welcome back to your biology online classes after a short break. Today we are going to start our chapter number 8, that is circulatory system. That is a chapter from human physiology. Okay, we have completed our plant physiology and there was one chapter, chapter number 7, that is chemical coordination in plants. As per the new ICSE guidelines, now this chapter is reduced this year. Okay, so this chapter will not come in your syllabus. So after completion of chapter number 6, now we will start chapter number 8, that is circulatory system in humans. So in your previous classes or in your previous years, you all have uh, learned a little bit about your circulatory system. But in this time we will study it in a little bit more detail, and maybe you will also find it very interesting, as this chapter is one of my favorite chapter. So I think you will also enjoy it. So let's start with the circulatory system. So first of all, come to the content, means what you are going to learn in this chapter. First of all, introduction. What is circulatory system? Why it is needed by our body? What are the main functions of the circulatory system? Then what are the main parts of circulatory system? And then blood, because blood is one of the main part of the circulatory system. There are three main parts, that is the fluid, which is blood, and the vessels, which are the pipes, and the main pumping organ, heart. These are the three main parts we will study in detail. And first part is blood, so we will study about the composition of blood and what are the main functions of the blood, and then what are the different types of blood groups present in human body. Okay, and what is RH factor. Then we will study about the different types of vessels in our body. Then heart, function and structure of heart. Then mechanism and events involved in the process of circulation, cardiac cycle, pulse rate, heartbeat, blood pressures, whatever the different terminologies are involved in this event, we will discuss about all these terminologies. And then in the last, lymphatic system, because in addition to the blood there are more types of fluid present in our body, and we will discuss about all these fluids. Okay, so this is all about the chapter's content. It is a lengthy chapter, so I have divided the chapter into different parts. Let's start with the first part, in which we will study the introduction, why it is needed, and the composition of blood. So circulatory system means, first of all you need to understand that why we need a circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम का ये तो मतलब है कि इसमें कोई फ्लूइड है, वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है ऑर्गन्स के बीच में और बॉडी पार्ट्स के बीच में, और सर्कुलेशन के साथ में कुछ फंक्शंस करता है. ओके, सो हियर द सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इट विल डू मैनी फंक्शंस. First of all the living organisms, they need food material and they need oxygen, because the nutrients which we are having, that nutrients can be utilized by our body in the production of energy, and that we can produce only with the help of oxygen, by breaking down the food material by this oxygen. So हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं, so वो food, okay, you can see here, that food will come into the digestive system. That food from the digestive system, then it is needed that it should reach to every cell of our body. ओके, सो ये फूड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ये हमारी बॉडी के हर सेल तक कौन पहुंचाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स दैट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. इसमें एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करेगा, और ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो हो रही है. सो यहाँ ब्लड का क्या फंक्शन है? द मेन फंक्शन ऑफ आवर ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या करता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, एंड देन इट विल सर्कुलेट दैट न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ आवर body, every cell of our body. Okay, then while we are doing the respiration, okay, suppose it is our respiratory system, this was the digestive system, and respiratory system से जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, now it is needed कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए, जिससे कि वो उस फूड मटेरियल को तोड़ के उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके. सो नाउ इट इज़ नीडेड कि दैट ऑक्सीजन शुड रीच टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. सो फिर से ये ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को कैरी करेगा और उसको भी हर बॉडी के हर सेल तक
उसको प्रोवाइड करेगा। ओके, सो यहाँ से ये ऑक्सीजन सारे सेल्स के पास पहुँच गई है। उसके बाद ये जो सेल्स है इन्होंने ऑलरेडी जो पहले से जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करके जब फूड का ब्रेक डाउन किया तो इनके पास में एक बाय प्रोडक्ट आ गया, वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बाहर निकलना चाहिए। ओके, सो ये वेस्ट प्रोडक्ट अब क्या होगा, फिर से ब्लड उसको कैरी करेगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ओके, वो उसको लंग्स तक लेके आएगा और उसके बाद लंग्स के थ्रू हम उसको एक्सेल आउट कर देते हैं। So circulatory system is the system of our body which will be used for the distribution of food, for the distribution of oxygen to all the parts of the body, as well as for the removal of the body waste, and this is performed by a system. This transporting system is called as circulatory system of our body, because अब यहाँ पे हमारा जो excretory system है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट थी उसको ब्लड ने लंग्स तक पहुँचाया और वो अब बाहर निकल गया। उसके अलावा भी ब्लड के अंदर और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी ब्लड लेके आता है किडनीज़ के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ओके, यहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। ओके, और फिल्टर होने के बाद ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है अब ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओके, सो वी कैन से कि हमारी बॉडी के जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे कैन फंक्शन only with the help of circulatory system. Okay, so circulatory system, respiratory system, excretory system, digestive system, they all are interconnected to each other. Okay, and they are functioning in a proper way with all together. So circulatory system is very important system of our body. Okay, and it is needed to pick up and deliver the supplies and waste around the body. Is it understood? Now come to the main parts of the circulatory system. Suppose this is our circulatory system. Okay, circulatory system में major parts क्या होता है, हमारा heart. Okay, heart is here a pumping organ. पंपिंग ऑर्गन का क्या काम होता है, जो ब्लड को पंप करता है, एक प्रेशर से ब्लड को अपने पास बुलाता है, फिर इसको फिर से पंप करता है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, फिर बॉडी पार्ट से ब्लड को फिर से अपने पास बुलाना, फिर वापस उसको पंप करना। सो यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ मोटर मशीन। ओके, हमारी मोटर का क्या काम होता है, जैसे घरों में जो मोटर्स लगी होती है वो क्या करती है, वाटर को अपनी एक पावर से उसको अपने पास लाके उसको सपोर्ट, उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। सो जस्ट लाइक दैट हियर द हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, वो पंप करके ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, ब्लड वेसल्स क्या है, दीज आर द स्मॉल पाइपलाइंस। ओके, ये जो हार्ट है इससे बहुत सारी वेसल्स निकलती है, पाइप्स निकलते हैं, और इस पाइप्स के अंदर ये जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। बट दीज वेसल्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द फ्लूइड, जो मेन लिक्विड पोर्शन है, जो ये सारा काम करता है, जो कैरी करता है, वो लिक्विड है हमारी बॉडी का ब्लड। Okay, that is, the blood is the main liquid fluid portion which will carry the oxygen, nutrients and waste products. Clear? Now in addition to the blood, we are also having some more liquids or fluid in our body, or we can say the mediums, that is tissue fluid and lymph. Okay, about lymph we will discuss in detail in the lymphatic system. Now let us discuss about the tissue fluid. Tissue fluid का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स के आसपास की जो जगह है वहाँ पे जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ओके, वो फ्लूइड कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन सर्कुलेशन, हाउ, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस लेटर। Now come to first of all the main liquid portion or a fluid which is the main medium for the circulatory system, that is our blood. Okay, so let's discuss about the blood composition and its function. So blood is the main circulatory portion. It is red in color, viscous, it's very viscous, and it is a complex tissue. Okay, because it is composed of many different types of cells. Now it is a type of connective tissue. You have studied about the tissues and its type in your 9th standard. Connective tissues का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के different parts को connect करता है। Okay, and when the matrix is liquid, then it is called as fluid connective tissue. When we are studying the quality of blood and its composition, then this study is called as hematology. Okay, and this
blood is in red in color and it's alkaline in condition, okay, and it is salty in taste, okay, और इसकी pH range होती है 7.3 to 7.5, okay, और एक adult के अंदर 5 लीटर of blood होता है almost, जो कि उसकी body का approximately 8% होता है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस कि इस ब्लड के अंदर क्या क्या होता है. सो बेसिकली ब्लड में एक होता है उसका मीडियम और मेन लिक्विड पोर्शन, फ्लूइड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और इसके अलावा 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ओके, सो हम ये चीज़ कैसे पता कर सकते हैं? जो ब्लड का कंपोजिशन है वो अगर आपको टेस्ट करना है देन यू नीड टू सेंट्रीफ्यूज अ ब्लड. सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है? अगर आप बहुत ही हाई स्पीड से, जब उसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मशीन होती है उसमें आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सो उस टाइम में क्या होता है कि उसका जितना भी लिक्विड पोर्शन है वो सारा ऊपर आ जाता है, और जितनी भी जो हैवी सेल्स होती है ब्लड के अंदर वो सब नीचे बैठ जाती है. ओके, इसका मतलब यही है कि मिक्सर, जूसर या कोई भी जो सेंट्रीफ्यूगर होता है उसके अंदर आप बहुत हाई स्पीड से उसको आप रोटेट करते हैं तो वो जो ब्लड का कंपोजिशन है वो अलग अलग हो जाता है. सो जो उसके अंदर लिक्विड पोर्शन है, उस येलोइश लिक्विड पोर्शन को तो हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सेल्स हैं वो सारी नीचे बैठ जाती है. व्हेन वी विल study about the different cells, then we will see that cellular elements are of 3 type. RBC होती है उसमें, WBCs होती है और platelets होती है. ओके, सो हियर वी कैन सी कि ब्लड के अंदर अब कौन कौन से कंपोजिशंस हो गए, सेल्यूलर कंपोजिशन एंड नॉन सेल्यूलर कंपोजिशन. सेल्यूलर का मतलब है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है ब्लड के अंदर. नॉन सेल्यूलर का मतलब है कि जो लिक्विड पोर्शन है, जो मैट्रिक्स है उसका. ओके, ब्लड के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स में ये तीनों तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है. ओके, सो ये जो लिक्विड मैट्रिक्स है दैट इज़ अ नॉन सेल्यूलर कंपोजिशन. सो नॉन सेल्यूलर कंपोजिशन में क्या आएगा, प्लाज्मा विच इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन, और जो सेल्स हैं वो सेल्स को हम बोलते हैं ब्लड क्रैप्सूल्स. ओके, ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लड सेल्स को हम और क्या बोल सकते हैं, ब्लड क्रैप्सूल्स. सो ब्लड क्रैप्सूल्स आर ऑफ 3 टाइप, दैट इज आरबीसी, WBCs and platelets, and the scientific names are erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. ओके, नाउ हियर यू कैन सी कि जो WBCs है वो आगे और भी बहुत अलग अलग तरह की होती है. सो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द WBCs. द WBCs आर अगेन डिवाइडेड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड agranulocytes. Granulocytes are of neutrophil, eosinophil, basophil, and agranulocytes are of monocytes and lymphocytes. So this is again subdivided into many different types because WBCs की बहुत सारी types होती है. Okay, so in this part we will discuss only about the RBCs and the platelets. Now before starting the cellular element, let us discuss about the non-cellular element or non-cellular composition of the blood, that is the plasma. Okay, so plasma is a straw colored means it is light yellow in color. Okay, and it is about 55 to 60% of the blood volume. ओके, ब्लड के अंदर जो 55 to 65% तो वो लिक्विड होता है प्लाज्मा, और उसके अलावा 45% के अप्रॉक्सीमेटली सेल्स होती है. ओके, इस प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. ओके, सो मैनी थिंग्स आर देयर इन दिस. ओके, और जो बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो भी प्लाज्मा में आ जाते हैं, और प्लाज्मा के थ्रू ही वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सो ये जो प्लाज्मा है दैट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, जिसके अंदर ये सेल्स, ब्लड की जो ब्लड क्रैप्सूल्स है वो पड़ी है. ओके, और ये जो मैट्रिक्स है ये अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर देन द प्लाज्मा विल बिकम वेरी डाइल्यूटेड. ओके, सो प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90 to 92% ऑफ वाटर. ओके, और इसके अलावा जितने भी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्लाज्मा में ही आ जाते हैं, और प्लाज्मा के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Okay, so plasma is very important because in the transportation of the enzymes, hormones and waste products, nutrients, water, plasma will play an important role.
ओके और जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट किससे होते हैं, थ्रू द प्लाज्मा, बिकॉज दे ऑल आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और जिनका मेन फंक्शन होता है कि वो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करती है, ओके जब भी ज़रूरत पड़ती है। बट उस टाइम पे जब वो प्लाज्मा के अंदर है तब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, एंड व्हेन देयर इज़ अ नीड देन दे विल कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव फॉर्म. When we will discuss about the blood clotting, that time I will explain you about the proteins fibrinogen and prothrombin as a coagulating factors in a blood. Okay, so plasma के अंदर से अगर एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो अब उस प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम. So this is all about the liquid portion and aqueous solution plasma. Now come to the cellular composition. 3 cells are there, RBC, WBC and platelets. Let us start with the RBCs, which are also called as erythrocytes. Okay. So red blood corpuscles are the major cells which are red in color and which will impart red color to the blood. Okay. So why they are imparting red color to the ब्लड, बिकॉज ये जो आरबीसीज होती हैं इनमें एक पिगमेंट होता है एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. मे बी यू हैव ऑल हैव हर्ड अबाउट इट. एंड दिस इज अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बिकॉज इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीम. ओके और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. और इसका मेन काम क्या है कि ये ऑक्सीजन को कंबाइन करती है, गैसेस को कंबाइन करती है. तो द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसीज इज टू हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ओके सो बेसिकली आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या है, इट विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट आरबीसीज में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है लंग्स से, फिर उसको लेके जाता है सेल्स तक, वहाँ पे वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है. ओके और उसके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसको बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा और फिर वो उसको लंग्स तक लेके जाके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर एक्सेल आउट कर देते हैं. Okay, now come to the structure. They are circular, biconcave in shape. Okay, biconcave का क्या मतलब हुआ कि somewhat like कि जो अपने किनारों पे से मोटी और बीच में से थोड़ा सा पतली है, तो उस टाइप का शेप जो होता है, like this is called as biconcave shape. Okay, एंड दे आर इन्यूक्लिएटेड. मेच्योरिटी पे इनका जो न्यूक्लियस है वो रिमूव हो जाता है. दे आर विदाउट न्यूक्लियस, बिकॉज यंग आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे वो मेच्योर होती है उनका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, जिससे कि सेल को ज़्यादा स्पेस मिल जाए, हीमोग्लोबिन को ज़्यादा स्पेस मिल जाए ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए. ओके सो दे आर बाइकॉन्केव इन शेप. और इसी वजह से क्या होता है, ऐसे शेप के कारण इनको ये एडवांटेज मिलता है कि इनका ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये मैक्सिमम ऑक्सीजन या मैक्सिमम गैसेस को बाइंड कर सकती है. ओके इसके अलावा इवन दे डू नॉट हैव सम अदर ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस. ये सब इसमें से जब मेच्योरिटी के टाइम पे रिमूव हो जाते हैं और इसका मेन रीज़न यही है सो दैट दे कैन गेट अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग मैक्सिमम गैसेस. ओके जिससे कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी नेग्लिजिबल हो जाए और इनको सरफेस एरिया भी बढ़ जाए, जिससे कि मैक्सिमम गैसेस को बाइंड कर सके. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. ओके और मेन फंक्शन यही है कि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करके उसको भी ट्रांसपोर्ट करके एक्सेल आउट करने में हेल्प करती है. ओके और these blood cells, RBCs, WBCs, they all are produced in the bone marrow of our thick bones that maybe you are knowing that you have studied in your 9th standard. Now what is the average lifespan? It is of only 120 days. ओके और सो बेसिकली ये क्या करती हैं, रीफिल्स होती रहती हैं. रीफिल होती है बोन मैरोज में जाके, ब्लड फ्लो होता है जब बोन मैरोज में जाके रीफिल हो जाता है और न्यू सेल्स इसमें फिर से फिल्ड हो जाती है. ओके नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर आरबीसीज. एंड नाउ कम टू द सेकेंड टाइप्स ऑफ सेल्स. दैट platelets are colorless, oval or round in shape. Okay and they are also produced in bone marrows. bone marrows के जो बड़े सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स निकलते जाते हैं.
और ये फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स. ओके, सो दे आर मेड अप ऑफ द साइटोप्लाज्मिक fragments formed from the giant cells of the bone marrows. Okay, and they are very lightweighted and they are floating in the blood. They are also enucleated, and they also contain a very less number of organelles. लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 5 to 10 days. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. और इनका मेन काम होता है कि दे विल रिलीज द केमिकल कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के अलावा भी दे आर हैविंग मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस. लाइक दे विल हेल्प इन रेगुलेशन, वासो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, मीन्स हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं बाय डूइंग दैट क्लॉटिंग. ओके, एंड दे विल ऑल्सो हेल्प इन डिजॉल्विंग द ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट इन द वेसल्स. ओके, वेसल्स के अंदर अगर क्लॉट है तो उसको डिजॉल्व करेंगे, और अगर कहीं पे इंजरी हो गई है तो वहाँ से वो क्या करेंगे, उस पर क्लॉट फॉर्म करेंगे जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए, स्टॉप हो जाए. ओके, इसके अलावा समटाइम्स दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन. कुछ बैक्टीरियाज को ये भी डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड दे विल सिक्रीट सम केमिकल्स, जिससे कि क्या होगा कि कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस जगह पे WBCs को ये अट्रैक्ट करती है. ऐसा केमिकल ये सिक्रीट करती है जिससे कि WBCs वहाँ पे पहुँच सके. ओके, एंड वी कैन से कि ये ओवरऑल दे आर परफॉर्मिंग मेनी फंक्शंस, बट द मेन फंक्शन इज ओनली द clotting of blood. They will help in blood clotting. Now the next is leukocytes. It is of many different types, so that we will discuss in our next video. Okay, and your today's assignment is again just go through your book whatever we have completed today, and in addition to that check your progress and read your chapters thoroughly. Okay, thank you so much.